नमस्कार, मैं हूं श्वेता झा और एक बार फिर से हम हाजिर हैं। 3 एंकर्स, मेरी सहयोगी नेहा बाथम और मीनाक्षी कंडपाल। 1 घंटे तक हम आपके साथ होंगे। लॉकडाउन से रिलेटेड तमाम खबरें आपको हम बताएंगे। उसके अलावा भी कई खबरें होंगी, लेकिन आपको बता दें शुरुआत एक अच्छी खबर के साथ। जी हां, लॉकडाउन का लॉक खोलकर देश रफ्तार भरने को तैयार हो गया है। बसें और ट्रेन के बाद अब आप उड़ान की भी तैयारी कर लीजिए, क्योंकि 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू हो रही है। मीनाक्षी, हालांकि शुरुआत में 1/3 विमान सेवा ही शुरू होगी। फ्लाइट के ऑपरेशन के लिए नई गाइडलाइंस जारी हैं। कोरोना काल में आपको एयरपोर्ट का रंग रूप पूरी तरह से बदला हुआ दिखाई देगा और नेहा, इसका लोगों को बेसब्री से इंतजार भी था। इंतजार तो है, लेकिन कई सारे प्रिकॉशंस आपको लेने होंगे। आपकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाएगा। यही वजह है कि तमाम दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आपको विमान का जो समय है उसे 2 घंटा पहले पहुंचना होगा। 1 हैंड बैगेज और 1 चेक इन बैगेज ही अलाउड होगा। ये निर्देश ये भी दिए गए हैं कि ट्रॉली के इस्तेमाल से बचना होगा और साथ ही तमाम तरीके के स्क्रीनिंग टेस्ट से भी गुजरना होगा। थर्मल स्क्रीनिंग की जाएगी, जगह जगह पर सैनिटाइजर रखे जाएंगे, मास्क पहनना तो अनिवार्य है ही, लेकिन फ्लाइट के इस वक्त जो है हरदीप पुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे इसका रुख कर लेते हैं। When we announced the commencement of the Vande Bharat program, on that occasion also I had the members of the senior management of the ministry with me. Let me once again, from the extreme right, Shri Rajiv Bansal, Chairman Managing Director of Air India, Shri Arvind Singh, Chairman of the Airports Authority of India, my colleague and Secretary in the Ministry of Civil Aviation, Shri Pradeep Kharola. On my left, Shri Rakesh Asthana, who is the Chief of BCAS, and of course the PIO. Now, when we announced the Vande Bharat program on 5th May, we met virtually. We met through a VC. And I think the very fact that we are meeting on the 21st in a physical setting, and this is something I'm doing, I think, for the second time the last 2 or 3 days. I attended, rather addressed a similar press conference. I think this is also a reflection of the fact that we have gained more confidence in terms of normalization of the situation and resumption. Under Vande Bharat mission, as we speak, the numbers of our citizens who were stranded and or in distress outside, those coming back is increasing. The latest figure that I have is that we have brought back more than 20,000 of our citizens from various destinations. Because they have carry our citizens who are normally resident abroad and who needed to travel because they have jobs to do, they have got other professional commitments. We don't want to carry them, but because our flights to the United States, they're coming chock-a-block full, but they're also going full. But some of the countries from which we are bringing our citizens back, they are at this point of time not allowing foreign nationals to come back. And therefore, some of the people wanting to travel back, they may have permanent visas, they may have other residence permits, but since they are not on the passports of the countries, and there are 6 countries in the Gulf, Middle East, some countries in East Asia also. But the larger point I want to make is that we started somewhat cautiously. In the week between 6th and 13th May, the intention was to bring back about 12,800 or so. That was roughly the idea. We have stuck to those figures, but for the second week, which seamlessly was dovetailed into the first week, we ramped up the numbers, made it more than double. And even as we speak, I know my colleague, the CMD Air India and Secretary Civil Aviation, they are already talking in terms of ramping up the number of people to be brought back. Substantial increase in the number of flights that the Air India family, Air India and Air Indian Express will be undertaking. But equally, we have also taken up our private carriers, and I'm very happy about that. They had expressed a desire to
participate in the evacuation efforts. And I think it's a tribute to them also that they've stood by us, and they are going to be joining in that effort, which will also enable us to increase the number of flights and ensure that more and more people who are in distress or are stranded outside can come back. But before I move to some other aspects of what we've been doing, I do want to underline that our effort during this Vande Bharat mission was not to bring back everyone who wants to come back. The clear emphasis is on evacuating those of our citizens who are genuinely stranded and in distress abroad. Because if we look at the overall numbers of Indians, I mean, we're a large country, we have a population 1.35 billion, the number of Indians living abroad, both on Indian passports and other, goes into several million. I think more than 25 million according to one estimate. So the idea is not to bring back everyone, only those who are under stress or, who really need to come back. Equally, those of our citizens who have regular jobs outside which have opened up, they have professional commitments. So the idea is to concentrate on those. But there also the numbers are large, and we are increasing the number of flights and our overall carrying capacity. And this Vande Bharat mission, touch wood, so far has gone very well. As I said, flights are coming back full. I want to compliment Air India and all the other stakeholders, our airports, our DGCA, everyone has worked, our missions in particular, Ministry of External Affairs. Because, these are very difficult circumstances. Locating people, identifying who should travel, under what criteria under priority. These are not easy decisions to make, but it's been doing very well. First phase has given way seamlessly to the second phase and will be increasing as we go along. Another of our activities, which was carried out, I think, with great satisfaction to me and to all the other stakeholders, is that after the suspension of flights on 25th March, one of the major initiatives of the ministry, Mission Lifeline Udan, which has now covered more than 5 lakh kilometers, 500,000 kilometers, and under Lifeline Udan, we have carried a cargo load of around 900 tons to various parts of the country. Now, 1 ton is quite a bit, but 900 tons, and if you see what we've carried, essentially covering COVID-19 related reagents, enzymes, medical equipment, testing kits, PPEs, masks, gloves, medicine, and other accessories, and cargo requisition by state and the governments of the Union Territory. The Lifeline Udan flights have received excellent support from all the stakeholders, the state governments and the other stakeholders. Private scheduled operators have also operated cargo flights on a commercial basis. Similarly, on the request of various agencies, Air India has operated chartered flights to bring 1,444 tons of critical medical supplies from abroad, that is into India. Air India has also carried about 30 tons of critical medical cargo to foreign countries. Now, the point I want to stress under Lifeline Udan is it represents a very important segment of our activity post the lockdown being declared. Because the lockdown was effective, because it was taken early and in a timely manner, we can today say with a great deal of confidence that we have been able to escape this situation which other countries found themselves in. I mean, for a country of India's size, 1.35 billion people, we are testing what, 100,000 people a day? More than that. And the total number of fatalities is about 3,000 or so. Our recovery rate is doing very well. But when you have a situation like this, what you really need to do is not to look at the total number of cases, but to look at the fatalities. And you have to manage those. Now, the fatalities today, the Indian figure is one of the lowest in the world. It is about 3% or so. And since I'm a member of the group of ministers dealing with this
pandemic chaired by my senior colleague Dr. Harshvardhan, I keep asking the question, Secretary Civil Aviation is also a member, out of these 3% of fatalities, how many of them are cases where the patients had pre-existing medical conditions or comorbidities as it's called, and the figure is sometimes termed to be extremely high, 85% or so. So all I'm saying is we have to keep our fingers crossed, but just as it was very important, absolutely essential to have a lockdown early. तो नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी बता रहे थे कि किस तरह से वंदे भारत मिशन के तहत कई लोगों को जो कि वाकई विदेश में फंसे हुए थे, कई ऐसे छात्र थे जो कि स्ट्रेस्ड आउट थे, उनको लाया गया है, ना कि सभी को लाने के लिए ये मिशन था। बढ़ेंगे आगे। कोरोना काल में पूरा देश बदल रहा है, तो फिर एयरपोर्ट इस बदलाव की बयार से कैसे दूर रह सकता है? 25 मई से जब घरेलू उड़ान शुरू होगी तो आपका सफर पहले के मुकाबले बहुत अलग होगा। कई शर्तों के साथ ही उड़ान भरनी होगी और नेहा बहुत जरूरी है कि लोगों तक ये बातें सही प्लेटफॉर्म के जरिए पहुंचे भी कि गाइडलाइंस क्या हैं। और हम उम्मीद और इंतजार यही कर रहे हैं कि इस पीसी में आगे नागरिक उड्डयन मंत्री बताएंगे कि किस तरीके से दिशा निर्देशों का पालन किया जाना है। देश भर के एयरपोर्ट्स बदलने वाले हैं, क्या क्या नए इंतजाम होंगे देश के अलग अलग एयरपोर्ट से, ये रिपोर्ट देखिए। हवाई यात्रा करने वाले यात्रियों के लिए खुशखबरी है। 25 तारीख से अब उनके लिए डोमेस्टिक एयरलाइंस से वो लोग हवाई यात्रा कर सकते हैं। मैं आईजीआई एयरपोर्ट पर इस वक्त मौजूद हूं और किस तरीके से एयरपोर्ट पर तैयारी की जा रही है, आज तक आपको एक्सक्लूसिव यहां के विजुअल दिखा रहा है। आप देखना चाहेंगे कि किस तरीके से यहां पर सीआईएसएफ की जो टीम मौजूद है वो पूरी तैयारी कर रही है कि किसी भी पैसेंजर से टच न हो, यानी कि नो टच सिस्टम का इस्तेमाल करते हुए सीआईएसएफ यहां पर कदम उठा रही है। वहीं आज तक को यह भी एक्सक्लूसिव जानकारी मिली है कि अलग अलग एयरलाइंस को गेट मुहैया करा दिए जाएंगे, जैसे कि ये गेट नंबर 2 आपको दिखाई पड़ रहा है। गेट नंबर 2 किसी दूसरी एयरलाइंस के लिए होगा और गेट नंबर 1 किसी दूसरी एयरलाइंस के लिए होगा। तो इस तरीके से व्यवस्था की जा रही है कि अलग अलग गेट पर किस एयरलाइंस को और कहां पर को उनको लाना है, पैसेंजर किस तरीके से यहां पर इकट्ठे होंगे, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाने के लिए इस तरीके के कदम उठाए जा रहे हैं। इस वक्त हम पटना एयरपोर्ट पे मौजूद हैं और आपको हम सबसे पहले तस्वीर दिखाएंगे कि लॉकडाउन से पहले कैसे हालात हुआ करते थे और अब जब लॉकडाउन के बाद 25 मई से जो एयरपोर्ट्स खुलेंगे, हवाई जहाज चलना शुरू होगी, उसके बाद कैसी व्यवस्था है। सबसे पहले आप देख लीजिए, जब आप पटना एयरपोर्ट में आएंगे तो ये आपके जो डिपार्चर गेट है उसके बाहर ही में आप देख लीजिए पैसेंजर्स के लिए किस तरीके से यहाँ मार्किंग की गई है सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करते हुए, ताकि हर यात्री के बीच में तकरीबन 2 से 3 फीट की दूरी रहे, सोशल डिस्टेंसिंग बनाया जाए। उसको यहाँ पर सबसे पहले देखिए आप किस तरीके से मार्किंग की गई है। उसके बाद जब आप डिपार्चर गेट पे आते हैं तो सबसे पहले जो आपको यहाँ पर प्रक्रिया होती है कि सीआईएसएफ के जो यहाँ पे जवान होते हैं उनको आपको टिकट दिखाना होता है, अपना आई कार्ड दिखाना होता है। तो किस तरीके की यहाँ व्यवस्था होगी, यहाँ आप देख लीजिए। यहाँ डिपार्चर पर आप जैसे ही आएंगे तो अब कांटेक्ट ना हो लोगों से, उसके लिए यहाँ पे देखिए वेब कैम लगा दिया गया है। ये वेब कैम लगाया है और यहाँ पर आपको अपना जो टिकट हो या फिर आपका आई कार्ड है उसको यहाँ पर आपको दिखाएंगे, तो फिर उसकी तस्वीर अंदर आप देख लीजिए। एक तो यहाँ पे एक मिनट, अंदर जो है यहाँ पे जो सीआईएसएफ के जवान बैठे होंगे उनको इस कैमरे पे सामने दिखाई देगा। भारत सरकार के आदेश के बाद जयपुर एयरपोर्ट भी अराइवल और डिपार्चर के लिए पूरी तरह से तैयार है। हम आपको दिखाना चाहेंगे किस तरह से यहाँ पर पूरी पुख्ता व्यवस्था की गई है कि कोरोना जैसी बीमारी को ध्यान में रखते हुए यात्रियों को अंदर जाने दिया जाए और बाहर लाया जाए। हमारे साथ हैं एयरपोर्ट के डायरेक्टर जगदीप बल्हारा जी भी हैं, साथ में उनसे बातचीत करते रहेंगे। सर, क्या व्यवस्था है, किस तरह की व्यवस्था है? जैसा कि आप देख रहे हैं, बाहर से हमने डिस्टेंस मार्किंग शुरू कर दी। ये डिस्टेंस मार्किंग है? हाँ जी। इसमें क्या है, पैसेंजर जब गाड़ी से उतरेंगे उसके बाद यहाँ से अंदर आएंगे, ये स्टेप्स बने हुए हैं, तो ऐसे इस डिस्टेंस को मेंटेन करते हुए यहाँ पर आएंगे। यहाँ पर एक हमारा कंप्यूटर से उस पे वो स्क्रीन पे लगेगा, ये बोर्डिंग पास दिखाएंगे, तो सीआईएसएफ वाले उसको ओके करेंगे, तब वो अंदर जाएंगे। इसके अलावा बात करने के लिए दूर से हमने एक और काउंटर बना रखा है। ये काउंटर बनाया गया है, किसी को बात करना है तो इसके बाहर से बात करेगा, ताकि किसी को कोई शक है, कोई इंक्वायरी है तो वो सीआईएसएफ के पर्सनल यहाँ रहेंगे, वो बात कर सकते हैं, वो बात करें। फिलहाल एक ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक।
और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। एक बार फिर से आपको लिए चलते हैं। Crew will be required to be in full protective gear, full protective suit. Only one check-in bag will be allowed. Passengers should report at least 2 hours before the departure time. On arrival at the destination, the traveling passengers will have to adhere to such health protocols as are prescribed by the destination state or union territories, and fares will be regulated and should be within a fixed range. जैसे मैंने कहा, ये इसकी शुरुआत डोमेस्टिक सिविल एविएशन की 25 मई से होगी, और जैसे हम एक्सपीरियंस गेन करेंगे, the number of flights will sought to be increased. और मुझे मालूम है कि आप में से कई हमारे मित्र हैं जो ये प्रश्न पूछना चाहेंगे। मैं आपके प्रश्न पूछने से पहले ही आपको बता देता हूं। अगर सवाल होगा कि अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल ट्रैवल का क्या होगा, जब हमें डोमेस्टिक ट्रैवल में, जैसे मैंने कहा, वी स्टार्टेड विद वंदे भारत एंड आई केप्ट सेइंग, देखिए हम कुछ लोगों को लाएंगे, 1,00,000 1.5 लाख टोटल वंदे भारत, पर डोमेस्टिक ट्रैवल जो है तभी चालू किया जा सकेगा जब हमारी बाकी मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है रेलवेज, एंड एज यू नो द रेलवेज कैरी अ मच लार्जर नंबर ऑफ पैसेंजर्स। रेलवेज, अब मैं आपको अपना ही मंत्रालय का उदाहरण दे दूं। एज मिनिस्टर ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर दिल्ली मेट्रो। फिलहाल एक ब्रेक ले यहां रुक रहे हैं, फौरन लौटेंगे, देखते रहिए आज तक। एक वायरस, एक WHO और 3 शक्तिशाली देश, और इसकी वजह से जो टक्कर इस वक्त पूरी दुनिया के सामने है, क्योंकि एक तरफ कोरोना का संक्रमण है और उसके सामने अगर 2 महाशक्तियां इस तरह से टकराती हैं तो ये पूरी दुनिया के लिए अच्छे संकेत नहीं है। हमने पहले भी देखा है किस तरीके से अमेरिका लगातार चीन पर निशाना साधता रहा है। दरअसल WHO पर चीन और अमेरिका की तकरार में रूस भी अब बीच में कूद पड़ा है। उसने ट्रंप की धमकियों की निंदा की है और नसीहत ये दी है कि अमेरिका अपनी हद में रहे। श्वेता, बिल्कुल, और अमेरिका की दादागिरी को खुला चैलेंज देकर पुतिन के उप विदेश मंत्री ने कोरोना कांड को और संगीन बना दिया है। WHO की यह सालाना बैठक मानो दुनिया का सबसे बड़ा दंगल बन गई। इस संगठन के किरदार और व्यवहार पर अमेरिका और चीन की तनातनी में रूस भी कूद पड़ा है, वो भी पूरे ठसक के साथ। मानो वो भी ट्रंप को देख लेने के मूड में है। बिना लाग लपेट के रूस ने अमेरिका के तौर तरीकों और धमकियों की निंदा की। ट्रंप ने WHO से अमेरिका को अलग कर लेने और WHO को दिए जाने वाले सालाना अनुदान को हमेशा के लिए रोक देने की धमकी दी थी। ये बात चीन के हिमायती रूस को भी चुभ गई। अब तक आमतौर पर चुप रहने वाले रूस ने खुद ट्रंप को खरी खरी सुना डाली है। रूस के विदेश मंत्री की तल्खी पर गौर कीजिए। हम कोरोना पर राजनीति के सख्त खिलाफ हैं। हर बात WHO पर नहीं थोपी जा सकती। किसी एक देश के राजनीतिक और भौगोलिक पसंद नापसंद के आधार पर किसी अंतर्राष्ट्रीय संगठन पर चोट नहीं पहुंचाई जा सकती, चाहे वो अमेरिका ही क्यों ना हो। तो रूस ने अपनी तरफ से ये साफ कर दिया है कि बहिष्कार करने से कोई फायदा नहीं होगा। ये समय ऐसा है जब WHO का सहयोग करने की आवश्यकता है। अब सीधे तौर पर देखिए तो ये WHO का समर्थन है, लेकिन शायद रूस अपनी पुरानी दुश्मनी भूला नहीं है, इसीलिए आज की तारीख में चीन के साथ खड़ा भी दिख रहा है। रूस का रोष ट्रंप पर फूटा है। दरअसल WHO की एनुअल जनरल बॉडी मीटिंग शुरू होने से पहले ही ट्रंप ने उसे चिट्ठी लिखकर बेतरह हड़काया था। उन्होंने 30 दिन में WHO को अपना चाल चरित्र और चेहरा सब कुछ बदलने की धमकी दी थी। एक तरह से वो कह गए, कोरोना मामले पर निष्पक्ष जांच नहीं हुई और WHO चीन की तरफदारी करता रहा तो वो उसे बर्बाद कर देंगे। I chose not to make a statement today. I'll be giving them a statement sometime in the near future, but I chose not to give a statement. I think they've done a very sad job in the last period of time. And again, the United States pays them $450 million a year. China pays them $38 million a year. And they're a puppet of China. हालांकि चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने पुरजोर तरीके से ट्रंप के आरोपों का खंडन किया। 中方始终本着公开、透明、负责任的态度，
及时向世卫组织及相关国家通报疫情信息，第一时间发布病毒基因序列等信息，毫无保留同各方分享防控和救治经验，尽己所能，为有需要的国家提供了大量支持和帮助。 यहां तक इस मामले में रूस की चढ़ाई भी तमतमाए ट्रंप को दोबारा तीखा बयान देने पर रोक नहीं पाई। उन्होंने ट्वीट कर इशारों में शी जिनपिंग पर तगड़ा निशाना साधा है। चीन में कुछ सिरफिरे कोरोना के लिए दुनिया में सबको दोष दे रहे हैं, बस चीन को पाक साफ बता रहे हैं। इस वायरस ने लाखों लोगों की जान ली है। सच तो ये है कि ये चीन के निकम्मेपन का नतीजा है, जिसकी वजह से दुनिया भर में मौतें हो रही है। खैर, अमेरिका और चीन के बीच खलबली काफी पहले से है। काफी पहले से ही WHO पर भी निशाना है, लेकिन ये पहली बार हुआ जब 116 देशों ने चीन और WHO की भूमिका पर जांच की बात की। दुनिया भर से उठी आवाजों ने WHO को हिलाकर रख दिया है। दबाव इस हद तक बढ़ा कि WHO को खुद अपने खिलाफ और कोरोना वायरस की उत्पत्ति को लेकर जांच का ऐलान करना पड़ा। चीन जांच के लिए राजी हुआ, लेकिन यहाँ भी एक चाल है। इन सब के बीच मैन ऑन द मिशन डॉक्टर हर्षवर्धन देश में कोरोना को हराने की अलख जगाने के बाद अब वो विश्व स्वास्थ्य संगठन में भी बड़ी जिम्मेदारी निभाने जा रहे हैं। आज तक ब्यूरो। तो श्वेता और मीनाक्षी, चीन को जो समर्थन चाहिए था वो आखिरकार उसे मिल ही गया है। WHO बहाने ही सही, लेकिन अमेरिका और रूस आमने सामने आ चुके हैं। बिल्कुल, और अब अमेरिका पर दबाव बढ़ गया है क्योंकि उसे एक फ्रंट पर नहीं बल्कि 2 फ्रंट पर लड़ाई लड़नी होगी। इतिहास गवाह है कि अमेरिका को रूस से निपटने में अक्सर मुश्किलों का सामना करना पड़ा है। कभी सीरिया में वॉर पर, कभी ईरान में न्यूक्लियर हथियार पर टकराते ही रहे हैं अमेरिका और रूस। कोल्ड वॉर के वक्त की तो बात ही क्या करनी, तब दुनिया ने अमेरिका और रूस की लड़ाई में जो जो देखा वो अविश्वसनीय था, अकल्पनीय था। लेकिन कोल्ड वॉर के बाद भी आज के जमाने में रूस और अमेरिका टकरा ही जाते हैं। वो कहावत है ना, दुश्मन का दुश्मन होता है दोस्त। आज अमेरिका बनाम रूस चीन की दास्तान बहुत हद तक इसी के इर्द गिर्द है। चीन को अमेरिका सुहाता नहीं, रूस से अमेरिका की पुरानी दुश्मनी थी। बस मिल लिए दो यार, और ऐसे हुआ अमेरिका पर पलटवार। वैसे भी दोनों साम्यवादी सोच के देश हैं। आज की चीन रूस को हर तरह की मदद भी देता है, इसलिए चीन पर मुसीबत पड़ी तो रूस आ गया। अब रूस और अमेरिका के बीच मॉडर्न तनातनी का लेखा जोखा भी देख लीजिए। अमेरिका के तमाम पाबंदियों के बाद भी रूस ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम में मदद करता है। ये भी तू मैं की एक जड़ है। 2011 में सीरिया की सरकार द्वारा नागरिक आंदोलन को कुचलने और उसमें रूस के साथ देने से भी अमेरिका अरसे से खपा रहा है। अमेरिका से मतभेद की वजह से चीन 2012 तक WTA से नहीं जुड़ा था। 2012 में रूस ने अमेरिका की एक एजेंसी को देश निकाला दे दिया था। आरोप थे कि USAID नाम की वो एजेंसी रूस के राजनीतिक प्रक्रियाओं पर असर डाल रही थी। कोल्ड वॉर यानी कि शीत युद्ध को आप एक ऐसे समय काल के तौर पर देख सकते हैं जहां पर जो डेमोक्रेटिक देश थे और जो कम्युनिस्ट देश थे, यानी पूरब और पश्चिम समझ लीजिए, उनके बीच एक टकराव की स्थिति सी रहती थी। तनाव रहता था, लेकिन इससे बढ़कर ये देश एक दूसरे को नीचा दिखाने में, एक दूसरे की जासूसी करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ा करते थे। अब 2 सुपर पावर उस समय के, यानी अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत यूनियन, उनके बीच में ये टकराव रहता था। और लगभग ये समझ लीजिए कि जब तक जो सोवियत यूनियन है वो खंडित नहीं हो गया, तब तक ये शीत युद्ध इन दोनों के बीच चलता रहा। हालांकि अब रूस और अमेरिका के बीच वैसी नफरत नहीं है जैसी किसी दौर में हुआ करती थी। पुतिन और ट्रंप की आपस में बनती भी रही है, लेकिन जब बात जोर दिखाने की होती है तो अब भी कोई किसी से कम नहीं। चीन के साथ मिलकर रूस ने उसी जोर की नई नुमाइश की है। आज तक ब्यूरो। मुंबई की अब बात करेंगे, जहां पर कांदिवली में आज कंफ्यूजन की स्थिति से हजारों मजदूरों के लिए मुश्किलें खड़ी हो गई।
बिल्कुल, और आपको बता दें कि मुंबई में ऐसा पहली बार नहीं हुआ है, दो बार पहले ही ट्रेन को लेकर के मजदूरों में अफरा तफरी का माहौल हुआ। दरअसल हजारों मजदूरों को मुंबई पुलिस ने बोरीवली स्टेशन के लिए कह दिया आने के लिए, और ये कहा जब मजदूर वहां पर पहुंचेंगे तो उन्हें बताया गया कि 2 ट्रेन कैंसिल हो गई है, इसलिए उन्हें लौटना होगा। मीनाक्षी, हालांकि जब इस तरह की असमंजस की स्थिति बनी तो उसके बाद रेलवे से सवाल भी पूछे गए, तो रेलवे का कहना है कि उन्होंने कोई ट्रेन कैंसिल नहीं की। तो क्या राज्य सरकार ने मजदूरों को गलत जानकारी दी? किसकी गलती से आखिर मजदूरों के साथ ऐसा हुआ? आज एक बड़े मिसकम्युनिकेशन के वजह से हजारों की तादाद में जो माइग्रेंट वर्कर्स है उनको तकलीफ झेलनी पड़ी है। इस वक्त हम मुंबई के कांदिवली इलाके में मौजूद है। ये एक पब्लिक ग्राउंड है जहां पर हजारों की तादाद में मजदूरों को बुलाया गया था। दरअसल बोरीवली रेलवे स्टेशन से 3 ट्रेनें चलनी थी आज, और यहाँ पर इन मजदूरों को बुलाकर बीएसटी के बसेस में भरकर बोरीवली रेलवे स्टेशन ले जाना था। जब यहाँ पर मजदूर आए, जितने भी माइग्रेंट वर्कर्स हैं अपने पूरे परिवार के साथ यहाँ पर आए, तो पुलिस ने उनको ये बताया कि 3 में से जो 2 ट्रेनें हैं वो आज रद्द कर दी गई है। मजदूर काफी ज्यादा नाराज थे क्योंकि कई दूर से लोग यहाँ पर आए हुए हैं। इस पूरे मामले में जब हमने रेलवे से बात करने की कोशिश की तो रेलवे ने साफ तौर पे कह दिया कि हमने कोई भी शेड्यूल्ड ट्रेन कैंसिल नहीं की है। लेकिन इस पूरे बड़े मिसकम्युनिकेशन के वजह से जो आम लोग हैं, जो माइग्रेंट वर्कर्स हैं, उनको खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ा है। अब कई सारे जो पूरे परिवार है अपने बाल बच्चे बीवियों के साथ, और जो बूढ़े लोग हैं उनके साथ, अब वो वापस घर नहीं जा सकते क्योंकि उनके घर काफी ज्यादा दूर है। बहुत ज्यादा पैसे खर्च करके वो यहाँ पर आए थे। अब उन्होंने ये डिसाइड किया है कि वो अब यहीं पर रुकेंगे, पूरी रात यहीं पर गुजारेंगे, और जितने भी दिन लग जाते हैं वो अब यहीं पर रहेगी क्योंकि वापस वो घर नहीं जा सकते। वो उनमें उनको काफी ज्यादा कठिनाई होगी, काफी ज्यादा पैसे खर्च हो गए, उतने पैसे उनके पास है नहीं। वो अपने पूरे परिवार के साथ इसी ग्राउंड पर रहेंगे जब तक दूसरी ट्रेन की सुविधा ना की जाए। कैमरा पर्सन समीर शानबाग के साथ सौरभ वक्तानिया, मुंबई, आज तक। सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि ये मिसकम्युनिकेशन आखिर हो कहां से रहा है, क्योंकि पिछले सोमवार को भी ऐसी ही स्थिति मुंबई में देखने को मिली थी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहे हमारे साथ, देखते रहिए आज तक। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।